বিধেয়কক লৈ এইবাৰ ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত গৰজি উঠিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ সাংসদ। মুছলমানৰ হিতৰ কথা কোৱা বিজেপি দলৰ এজন মাত্ৰ মুছলমান সাংসদ আছে। মুছলমান নেতাসকলৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত বিজেপি দলে ধ্বংস কৰিছে। গতিকে মুছলমানৰ হিতৰ কথা কোৱা বিজেপি দলে কিমানখিনি মুছলমানৰ হিতৰ বাবে কাম কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙে। এই সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটি সবিস্তাৰে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। বিজেপিয়ে মুছলমানৰ কি ভাল কৰিব সেয়া জনা আছে। গোটেই চৰকাৰৰ এজন মন্ত্ৰীও মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ নহয়। লোকসভা ৰাজ্যসভাত বিজেপিৰ মাত্ৰ এজন মুছলমান সাংসদ আছে। মুছলমানৰ ভালৰ বাবে এই বিধেয়ক আনিছে বুলি কৈছে বিজেপিয়ে। বিজেপিৰ ভাষণ শুনি কমেডিয়ান কপিল শৰ্মাৰ চোৱা যেন লাগে। এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে। ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কক লৈ ৰাজ্যসভাত গৰজি উঠিল আপৰ সাংসদ। মুছলমান নেতাৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতত ধ্বংস কৰিছে বিজেপিয়ে। আপৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। আৰু ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত গৰজি উঠিছে এবাৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ সাংসদ। বিজেপিয়ে মুছলমানৰ কি ভাল কৰিব সেয়া জনা আছে। গোটেই চৰকাৰত বিজেপি দলৰ চৰকাৰখনত এজন মন্ত্ৰীও মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ নহয়। আৰু লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত বিজেপি দলৰ পৰা মাত্ৰ এজন মুছলমান সাংসদ আছে। গতিকে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ বাবে বিজেপিয়ে কি ভাল কৰিব সেয়া জনা আছে। মুছলমানৰ ভালৰ বাবেহে ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কখন আনিছে বুলি বিজেপি দলে মন্তব্য কৰিছে। আৰু বিজেপি দলৰ এই ভাষণ শুনি কমেডিয়ান কপিল শৰ্মাৰ চোৱা যেন লাগে, এনেকৈ এতিয়া মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰি এই মন্তব্য কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙে। আৰু বহু মুছলমান নেতাৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত বিজেপি দলে ধ্বংস কৰিছে। অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ এতিয়া বিজেপি দলৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙে। বিজেপি দলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া মুছলমান নেতাৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত ধ্বংস কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আপৰ সাংসদগৰাকীয়ে। আৰু কৈছে যে বিজেপি দলৰ যিখন চৰকাৰ চলি আছে, চৰকাৰখনত এজন মন্ত্ৰীও মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ নহয়। আৰু লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত বিজেপি দলৰ এজন মাত্ৰ মুছলমান সাংসদ আছে। এনেদৰে ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত গৰজি উঠিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ সাংসদগৰাকী। আৰু এই সন্দৰ্ভত সঞ্জয় সিঙে কি মন্তব্য কৰিছিল, মন্তব্য আগবঢ়াব লৈছো। अम्बेडकर जी के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान ने दिया मान्यता, और आप उस संवैधानिक अधिकार को छीन रहे हैं एक गैर संवैधानिक बिल लाके। क्या क्या लिखा इस कानून के अंदर आपने, किस तरीके से आपने इस संविधान की हत्या करने का काम किया। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दो नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। अरे सुनना सीखो पहले। मैं जैसे उदय प्रताप जी की चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो
तो नुकसान सबका है। जो आकर मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मान्यवर, हम लोग बचपन से एक शब्द सुनते आए, सरकार माई बाप। सरकार माई बाप यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है, मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो वो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है, नहीं है मान्यवर। वो सौतेली मां है, वो सौतेली मां है, उसका व्यवहार सौतेला है। और आज आप जो काम कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की हत्या कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की धारा 26 में लिखा, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं रखरखाव करना, धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करना, चल एवं अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं अधिग्रहण करना तथा ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करना।